Hi, hello everyone. This is Chakit from VAC Global Education. Congratulations to everyone who have just recently cleared their class 12th. I am very happy and delighted that you guys have progressed enough to take your learning journey to the next level. The journey is going to get little tough, hard. Also, it will be exciting. You will get to learn so many things. Based on your academics, you will be able to decide which stream you should go for and which is your area of interest. And we as a company, we specialize in providing the information, also the guidance and hand holding for the student who plans to study abroad. So today I am here in front of you to discuss few points where I can be I can play a small part in your journey of helping you, guiding you, and getting you informed about different procedures and the pain points and the points where you need to be careful about how you would be able to plan your study abroad journey more efficiently, and you would be able to get a lot of insight about how you would be able to plan this journey without any glitch. So without wasting any time, let's start with today's video. I have come up with 5 points which you need to be very careful about when you plan to study abroad. So be it any country, be it any location, any course, this is a generic video where you would get to know about different ideas, different locations and their ways how you would be able to not just get the admission in the colleges, also you would be able to get the idea about how to apply the visa for particular country. So this would give you a generic guidelines about how the process works, and for specific country requirements there is a link in the description through which you guys can connect with us and we would be more than happy to help you. So this video will help the student as well as their parents to decide upon the process कि प्रोसेस कैसा रहता है और कैसे आप इस पूरे प्रोसेस को स्मूथली अचीव कर सकते हो इन ऑर्डर टू हैव अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंशियल करियर गोइंग अब्रॉड. सो सबसे पहला जो स्टेप है दैट इज कोर्स सिलेक्शन, कि आप कोर्स कैसे सेलेक्ट करते हो. सो कोर्स सेलेक्ट करने के दो मेजर क्राइटेरिया हैं. पहला क्राइटेरिया है आपका इंटरेस्ट और दूसरा है आपका एकेडमिक बैकग्राउंड. सो बहुत सारे बच्चे इस चीज़ में कंफ्यूज रहते हैं कि हमने आर्ट्स में पढ़ाई करी है, क्या हम बिजनेस कोर्स में जा सकते हैं, या हमने कॉमर्स से पढ़ाई करी है तो हम क्या साइंस के कोर्सेज ले सकते हैं, या जो साइंस वाले बच्चे हैं जिनको लगता है कि अभी बिजनेस में, मार्केटिंग में इसमें इंटरेस्ट है तो क्या वो अपना करियर स्विच कर सकते हैं. सो ये सारी चीज़ें पॉसिबल होती हैं बशर्ते आपके कंसल्टेंट को सही तरीके से पता हो कि कौन से कॉलेज आपको एडमिशन देंगे और किस तरीके से आपका वीज़ा अप्लाई होगा जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े. अब होता क्या है कि हर कॉलेज की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है, हर कोर्स की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है. सो यू वुड डेफिनेटली नीड अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ सेलेक्टिंग द बेस्ट कोर्स फॉर यू. उसी के बाद फिर आगे की कहानी स्टार्ट होती है. सो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका कोर्स सिलेक्शन. सो कुछ बच्चे हैं जिनके पास मैथ्स हैं, कुछ बच्चे हैं जिनके पास मैथ्स नहीं है. सबके लिए ऑप्शंस हैं हर फील्ड में. इट्स जस्ट दैट यू नीड टू मेक श्योर दैट योर काउंसलर्स इज अवेयर अबाउट which course to apply for, which university will accept your profile based on your academic proficiency. So for example, आपके मैथ्स में कितने मार्क्स हैं will decide your admission criteria. आपके मैथ्स में फिजिक्स, केमिस्ट्री, आप जो स्पेशलाइजेशन लेना चाहते हो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है. तो हर किसी के हिसाब से अलग अलग स्पेशलाइजेशन है और उसी के हिसाब से आपको एडमिशन मिलेगा. तो एडमिशन मिलने के लिए आपको दो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं. एक तो आपका आइल्स का स्कोर और दूसरा है आपका पासपोर्ट. तो अगर अभी आपने रिसेंटली क्लास 12th किया है, सो यू नीड टू मेक श्योर कि आपके पास आइल्स का स्कोर हो, पीटी का स्कोर हो, या फिर आपके पास डुओलिंगो हो या फिर टोफल हो, डिपेंडिंग अपॉन विच कंट्री यू आर गोइंग टू स्टडी फॉर. सो अलग अलग कंट्रीज़ की अलग अलग रिक्वायरमेंट है. तो कनाडा की रिक्वायरमेंट है आइल्स को, वो ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं.
PT is accepted in other part of the country, like other part of the world. For example, PT is 100% accepted in Australia, UK. So TOEFL is more for US. However, they accept IELTS and PT also. So depending upon which program you want to take. So we will touch upon the IELTS requirement a little later. So I am focusing just on the course selection right now. Now comes the second part, which is your कॉलेज सिलेक्शन और यूनिवर्सिटी सिलेक्शन. सो इसको सेलेक्ट करते हुए जो सबसे दो इम्पॉर्टेंट मेजर चीज़ें आती हैं वो आती हैं, पहला तो आपका बजट और दूसरा है आपकी लोकेशन प्रेफरेंस. कि बहुत सारे पेरेंट्स और बच्चों का क्राइटेरिया होता है कि हमारे रिलेटिव्स या हमारे फ्रेंड्स ऑलरेडी इस लोकेशन पर हैं, so we would be able to get the help in the accommodation in terms of getting to know how the people culture, and you will be able to get some support from that particular person who is already there. तो लोकेशन प्रेफरेंस होता है और बजट होता है. तो इस चीज़ के लिए यू कैन बुक अपॉइंटमेंट विद अस एंड वी वुड बी एबल टू गाइड यू कि फॉर दैट पर्टिकुलर लोकेशन what are the options which are suitable as per your profile and in your budget. So you guys can book the appointment through the link given in the description. Now we come to the IELTS part. IELTS या फिर मैं इसको बोलूँगा लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी. सो IELTS इज़ वन थिंग विच इज़ वेरी वेरी क्रूशियल. तो जितना ज़्यादा आपका IELTS का स्कोर होता है उतना ज़्यादा इट प्रूव्स दैट लैंग्वेज इज़ नॉट द बैरियर इन योर करियर प्रोग्रेशन. सो लैंग्वेज बैरियर जो है वो बहुत मेजर एक बैरियर होता है जिससे वीज़ा लगना भी और एडमिशन होना दोनों ही आपके बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं आइल्स पे डिपेंड करते हुए लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के एग्जाम से. तो जितना ज़्यादा आपका आइल्स का स्कोर होगा उतना ज़्यादा आपके एडमिशन होने में और फिर वीज़ा आने की प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी. सो फॉर एग्जाम्पल आई विल गिव यू द एग्जाम्पल फॉर कैनेडा. सो कैनेडा की UG रिक्वायरमेंट है 6 bands ईच. सो देर आर 4 modules इन आइल्स, रीडिंग राइटिंग लिसनिंग स्पीकिंग. उन चारों मॉड्यूल्स में आपके 6 bands ईच होने चाहिए जिससे कि आप ये सेटिस्फाई कर सकते हो इमिग्रेशन एज वेल एज कॉलेज की आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है लैंग्वेज की वो इतनी है कि वहाँ पर आप बोल सकते हो, पढ़ सकते हो, लिख सकते हो और सुन सकते हो विदाउट एनी ट्रबल. सो जितना ज़्यादा आप आइल्स में स्कोर करोगे उतने ज़्यादा आपके चांसेस बढ़ जाएंगे वीज़ा लेने के लिए. सेम गोज़ फॉर ऑस्ट्रेलिया, सेम गोज़ फॉर न्यूजीलैंड, सेम गोज़ फॉर UK एज वेल एज US. सो ये 5 मेजर डेस्टिनेशंस हैं जहाँ पर बच्चे पढ़ना जाते हैं और वहाँ पर बहुत सारी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं. उनमें बहुत ही अमेजिंग प्रोग्राम्स हैं साइंस के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, AI. फिर आपके पास कॉमर्स में है मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ब्रांड मैनेजमेंट. फिर आपके पास आर्ट्स में साइकोलॉजी, ऑटिज़म, बिहेवियरल साइंस, बहुत सारे ऑप्शंस हैं हर तरह के बच्चों के लिए, हर तरह के बैकग्राउंड के लिए. नाउ दैट ब्रिंग्स मी टू दी फोर्थ पॉइंट विच इज़ योर वीज़ा. तो आपका एडमिशन तो हो गया बट अभी आपको वीज़ा चाहिए. वीज़ा में जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है आपके फाइनेंशियल्स. सो किसी भी कंट्री में जब आप पढ़ने के लिए जा रहे हो तो इमिग्रेशन ये मेक श्योर करता है कि क्या आपके पास इनफ फंड्स हैं कि आप अपनी ट्यूशन फीस पे कर सकते हो एंड आपके लिविंग एक्सपेंसेस पे कर सकते हो. इवन दो यू आर अलाउड टू वर्क पार्ट टाइम इन ऑल दी countries, so 20 hours you are allowed to work in each country. However, immigration को चाहिए कि आपके पास इतना फंड्स होना चाहिए कि आप किसी भी ट्रबल के बिना वहाँ पर इजीली सस्टेन कर पाओ, अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान दे पाओ और साथ के साथ वर्क एक्सपीरियंस भी लेते रहो थ्रू दी पार्ट टाइम जॉब्स. दैट मेक्स यू इंडिपेंडेंट. अब तक हमारे लाइफ के सारे डिसीजन हमारे पेरेंट्स लेते हुए हैं बट गोइंग फॉरवर्ड व्हेन यू गो अब्रॉड बहुत सारे डिसीजन ऑन डेली बेसिस यू वुड हैव टू टेक योर सेल्फ. आपको क्या खाना है, क्या पहनना है से लेकर आपको कब पढ़ाई करनी है, कब जॉब पर जाना है, कैसे कम्यूट करना है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको खुद से डिसाइड करनी होगी. यू हैव टू प्लान इट बाय योर सेल्फ. सो यू हैव टू बी वेरी वेरी ऑर्गेनाइज. सो वीज़ा के टाइम पर फाइनेंशियल्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. तो जितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपके फाइनेंशियल्स होंगे उतना ज़्यादा आपको वीज़ा लेने में आसानी होगी. इन फाइनेंशियल यू वुड ऑल्सो नीड टू मेक श्योर कि आपके पेरेंट्स की ITR, बैंक स्टेटमेंट, आपकी सारी सेविंग्स आप अपने वीज़ा डॉक्यूमेंटेशन में दिखा सकते हो जिससे कि आपके वीज़ा लगने के चांसेस बढ़ जाएं. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ योर
documentation. So when you apply for the visa, the whole documentation needs to be in such a sync which describe your personality to the visa officer, that why you have chosen this particular country, why you have chosen this particular course, what are your means of finance, what are your future plans, where do you see yourself 3 years 5 years down the line, what plans you have made for your lives. And once the visa officer understand these plans, then the chances of you getting the visas goes way beyond the obvious. So these were, and this can be done through the simple document called SOP. So SOP is your statement of purpose, in which your consultant should help you write the SOP. And once your SOP is framed, combined with your extracurricular documents, we file the visa, and that's how you complete the whole process. So we just don't help you get the admission and the visa, we will help you with the accommodation, travel, each and everything, forex, whatever the need is, we are here to help you. So if you are looking forward to get guidance on study abroad for this coming intakes, you are more than welcome to contact us. There is a link in the description through which we can help you, and you can book an appointment with us. Our counselors will give you a call and understand your profile and give you the exact solution how we would be able to help you in your journey, which is to study abroad. So looking forward for your messages on our WhatsApp, and we shall see you in our next video. Till then, you guys can subscribe to VSE to learn more about these study abroad options as per your profile. Take care. Bye bye.